Hello students, my name is Neetal Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number is 3, the skeletal system. Now, in today's session, I am going to explain you about the rib cage, the backbone and limbs. But before I start today's session, I just want to recall you about our last 2 sessions. Session number 1, vocabulary words and meaning. In session 2, the skeletal system and the skull. Now, vocabulary words. Number 1, skeletal. S-K-E-L-E-T-A-L. Skeletal. Number 2, muscles. M-U-S-C-L-E-S. Muscles. Number 3, rib cage. R-I-B-C-A-G-E. Rib cage. Number 4, vertebrae. V-E-R-T-E-B-R-A-E. Vertebrae. Number 5, wrist. W-R-I-S-T. Wrist. Number 6, ligament. L-I-G-A-M-E-N-T. Ligament. Number 7, cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E. Cartilage. Number 8, tendons. T-E-N-D-O-N-S. Tendons. Number 9, voluntary. V-O-L-U-N-T-A-R-Y. Voluntary. Number 10, socket. S-O-C-K-E-T. Socket. Number 11, gliding. G-L-I-D-I-N-G. Gliding. Number 12, hinge. H-I-N-G-E. Hinge. Number 13, pivot. P-I-V-O-T. Pivot. Number 14, invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-E. Invertebrate. Number 15, skull. S-K-U-L. Skull. Sorry, S-K-U-L-L. Skull. Number 16, girdle. G-I-R-D-L-E. Girdle. Number 17, pelvic. P-E-L-V-I-C. Pelvic. Number 18, kidney. K-I-D-N-E-Y. Kidney. Number 19, heart. H-E-A-R-T. Heart. Number 20, internal. I-N-T-E-R-N-A-L. Internal. Now kids, once again let's pronunciate it so your pronunciation will be improved. Skeletal, muscles, rib cage, vertebrae, wrist, ligament, cartilage, tendons, voluntary, socket, gliding, hinge, pivot, invertebrate, skull, girdle, pelvic, kidney, heart, internal. Now kids, let's move to meanings. Number 1, skeleton. All the bones that support the body. जो सारे के सारे bones होते हैं जो body को support करते हैं, that is known as skeleton. Number 2, adult. A person that is fully grown. जो कोई भी person, कोई भी इंसान that is fully grown, जो बड़ा हो चुका है, जैसे कि मैं, आपके parents, वो सब किसमें आएंगे? Adults में. And you consider it as a kids, right? Number 3, injured. People who have been hurt. जो इंसान उसको कुछ भी लगा हो, मतलब उसको कोई भी घाव आया है, wound आया है, उसको क्या बोलेंगे? Injured. Number 4, attach. Join something to something. मतलब किसी भी चीज को किसी के साथ attach करना मतलब join करना. Okay? Now number 5, anchor. The part of your body where your foot joins your leg. Foot और leg के बीच में जो पार्ट होता है जो दोनों को जॉइंट करता है, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? एंकर. नाउ नंबर 6, contracts. To become or to make something smaller or shorter. मतलब कोई भी चीज सिकुड़ जाती है और वापस से
अपने आप आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एक्सट्रैक्ट मतलब खुलना। क्लियर? होल्ड, होल्ड मतलब टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, कोई भी चीज को सर्टेन पोजीशन में पकड़ के रखना मतलब होल्ड करना। क्लियर किड्स? नाउ आई होप सो यू रिकॉल अबाउट सेशन 1. नाउ लेट्स मूव टू अबाउट सेशन 2. The about the skeletal system. Now the skeletal system consists of bones and forms the framework of the body. कि एक skeletal system क्या है कि एक तो skeletal system पूरी किससे बनी होती है? बोन्स से। और उसको क्या बोलते हैं? उसका बॉडी में फ्रेमवर्क होता है जिससे वो हमारे सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ किड्स, किसे इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं? ब्रेन, लंग्स, स्टमक, फिर हार्ट, किडनी। तो ये सारे के सारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे बाहर की बाजू जो सारे के सारे ऑर्गन्स दिखते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो ये जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? इंटरनल या एक्सटर्नल? यस, इंटरनल ऑर्गन्स, राइट? द स्केलेटल सिस्टम अलोंग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू मूव। ये जो स्केलेटल सिस्टम होती है वो मस्कुलर सिस्टम से मिलके हमें हमारे बॉडी में मूव करने में हमारी हेल्प करता है। मूव में भी हेल्प करते हैं और सारी की सारी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, राइट? There are how many bones are there in adult's body? कितने बोन्स होते हैं एडल्ट्स की बॉडी में? 206 बोन्स होते हैं एडल्ट्स की बॉडी में। याद आ गए ना फटाफट से? नाउ किड्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम का इमेज शेयर किया था, राइट? उसमें देखा था यहाँ पे जो होता है उसे क्या बोलते हैं? स्कल। फिर उसके नीचे क्या आता है? ब्रेस्ट बोन। क्या आता है? ब्रेस्ट बोन। फिर उसके नीचे जो राउंड शेप में होता है उसको क्या बोलेंगे? रिब केज। क्या बोलेंगे? रिब। फिर उसके नीचे आता है वो आता है एक बैकबोन आता है। क्या आता है? बैकबोन। क्या आता है? बैकबोन। जो ऊपर के लिम्स होते हैं मतलब अपर लिम्स, और जो लेग्स के नीचे के होते हैं वो क्या होते हैं? लोअर लिम्स। और बीच में जो थाइस के बोन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थाई बोन। क्लियर? याद आ गई आपको? नाउ सेशन 2 में दूसरा टॉपिक था हमारा द स्कल। द स्कल इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ आवर फेस, फोरहेड, द बैक ऑफ आवर हेड एंड जोस। स्कल में कौन कौन से पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं? कौन कौन से बोन्स कनेक्टेड होते हैं? एक तो फेस के बोन्स, फोरहेड के बोन्स, बैक के बोन्स और जोस। There are 22 bones in the skull. How many bones? 22 bones in the skull. हमारे स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 22. The bones in the skull are fixed except the lower jaw. मैंने बोला था ना कि स्कल के अंदर जो बोन्स होते हैं जो वो सभी के सभी कनेक्टेड होते हैं एक्सेप्ट लोअर जो। ये अपर जो और ये लोअर जो। लोअर जो अगर कनेक्ट हो जाता है तो हम कोई भी फूड को च्यू नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट एबल टू इवन स्पीक ऑल्सो। तो ये सारी की सारी चीजें स्कल्स के कनेक्ट होती है बट एक्सेप्ट लोअर जो। लोअर जो को छोड़ के सब कुछ उसके साथ अटैच होता है मतलब ज्वाइन होता है। The skull protects the brain. स्कल का मेन पर्पस क्या है? तो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। हमारा जो अंदर डेलिकेट पार्ट होता है ना ब्रेन का उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल। क्लियर? Now kids, in today's session I am going to explain you the rib cage, the backbone and limbs. First topic, the rib cage. Rib cage क्या है? मैंने आपको लास्ट सेशन में rib cage के बारे में बोला था, राइट? In today's session आपको इमेज देख रही है? I am sharing an image of rib cage. वो दिख रहा है? rib cage होता है ribs are thin curved bones that are arranged to form a cage-like structure called the rib cage. मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था ना rib cage को rib cage क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एकदम केज की तरह दिखता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? rib cage। क्या बोलते हैं? rib cage।
वो क्या होते हैं, बहुत ही पतली कर्व्ड होती है, उसके अरेंजमेंट्स कैसी होती है, बहुत ही पतली कर्व्ड शेप में सब कुछ अरेंज होता है। आपको दिख रहा है ना पिक्चर में। The rib cage has 12 pairs of bones. At the center of the chest is a long bone called the breastbone. Rib cage जो होते हैं ना, उसको 12 pairs होती है। कितनी pairs होती है? 12 pairs होती है। वो 12 pairs होती है ना, वो बीच में आपको लंबा सा दिख रहा है, उससे क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। जो सारी की सारी जो 12 रिब्स होती है ना, वो किससे कनेक्टेड होती है? ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? ब्रेस्ट बोन से। किड्स, आपको पता है ब्रेस्ट बोन जो होते हैं ना, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम स्टेरनम भी बुला सकते हैं। क्या? स्टेरनम। ब्रेस्ट बोन को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेरनम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो रिब केज होता है ना, वो बहुत ही थिन मतलब पतला कर्व्ड शेप में होते हैं, और उसकी कितनी रिब्स होती है? 12 रिब्स होती है। वो किससे कनेक्टेड रहती है? वो ब्रेस्ट बोन बीच में दिखाई दे रही है ना, उससे सारी की सारी रिब्स कनेक्टेड होती है। अब ये जो ब्रेस्ट बोन है, उसका दूसरा नाम क्या है? स्टेरनम। क्या है? स्टेरनम। I hope so you will getting to know with this image. आपको पता चल रहा है ना ये इमेज में से देख के। Now at the back the ribs are attached to the backbone. The last two pairs of ribs are floating ribs as they are not attached to the sternum. The rib cage protects the heart and lungs. किड्स, ये जो रिब केज होती है ना, वो ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड होती है, राइट? बट जो लास्ट टू वाली होती है ना, वो अटैच होती नहीं है। उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग मतलब कि उसमें कोई भी अटैच होता नहीं। हम बोलते हैं ना कि ये फ्लोट कर रहा है, बोट फ्लोट कर रही है, मतलब कि पानी में तैर रहा है। तो फ्लोटिंग मतलब कि कोई भी कनेक्ट नहीं होती है, पर उसमें उसी में वहां पे ऑलरेडी होती है। That's why we called it as a floating ribs here. उसको हम floating ribs उस वजह से बोलेंगे क्योंकि वो कनेक्ट होती नहीं है। तो ये रिब केज का मेन पर्पस क्या है? तो के हार्ट और लंग्स को सेफ रखना, टू प्रोटेक्ट करना। उसको हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। हार्ट और लंग्स बहुत ही डेलिकेट पार्ट होते हैं। फिर उसमें कुछ लग जाता, अगर ऐसा कुछ है तो हम डिसेबल हो जाएंगे, हमें कुछ कर पाएंगे नहीं। हार्ट से तो हम ब्रीदिंग करते हैं, राइट? हार्ट पंपिंग करता है ब्लड का, तो ये सब कुछ होता है, राइट? लंग्स से ब्रीथ करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो ये कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो कि उसकी जो कर्व्ड थिन स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो कुछ भी लगता है तो वो उसमें लग जाता है, तो वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। किड्स, once again I am reading about the rib cage. Ribs are thin curved bones that are arranged to form a cage-like structure called the rib cage. The rib cage has 12 pairs of bones. At the center of the chest is the long bone called the breastbone. Other name of breastbone is sternum, which holds the rib together in front. कि वो जो जिससे कनेक्टेड होते हैं ना रिब्स, वो सारी की सारी रिब्स को होल्ड मतलब पकड़ के उसको अच्छी तरह से रखते हैं। अदरवाइज हम किस रिब्स ये जो होता है ना ब्रेस्ट बोन, वहां से ये सारी की सारी रिब्स होती है ना, यहाँ सपोज इमेजिन करना है कि ये ब्रेस्ट बोन है, तो उससे सब कुछ कनेक्टेड होता है, इसलिए वो सबको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। क्लियर? At the back, the ribs are attached to the backbone. The last two pairs of ribs are called floating ribs, as they are not attached to the sternum. The rib cage protects the heart and lungs. Clear, kids?
होप सो आपको रिब केज के बारे में पता चल गया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द बैकबोन। बैकबोन मतलब पीछे का बैकबोन। Here I am sharing an image of backbone। आपको दिख रहा है बैकबोन की इमेज कि बैकबोन कैसा होता है। उसके सामने एक छोटा सा है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। छोटू सा है ना वो। क्लियर? नाउ द बैकबोन, बैकबोन का द अदर नेम ऑफ बैकबोन इज स्पाइन। उसको हम स्पाइन भी बोल सकते हैं। बैकबोन को हम क्या बोल सकते हैं, स्पाइन भी बोल सकते हैं। The backbone or spine is made up of 33 small bones called vertebrae। वो जो आपको पूरी की पूरी कर्व में दिख रहा है ना, कर्व में, उसको क्या बोलेंगे, बैकबोन। क्या बोलेंगे, बैकबोन। फिर उसके बाजू में आपको वो जो छोटे छोटे बाहर निकले हुए बोन्स होते हैं ना, वो टोटल कितने होते हैं, 33। वो कितने होते हैं, 33। उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रे। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे। अगर एक सिंगुलर मतलब एक होता है उसको क्या बोलना है, वर्टिब्रा। पर्टिकुलर है उसको क्या बोलना है, वर्टिब्रा। और बहुत सारे होते हैं उसको क्या बोलना है, वर्टिब्रे। वो टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। These bones are linked together to form the vertebral column। ये सारे के सारे इकट्ठा होके उसको हम क्या बोलेंगे, vertebral column। पूरे के पूरे इकट्ठा होते हैं, लिंक होते हैं to form a vertebral column। उससे क्या बनता है, vertebral column। The backbone protects the delicate spinal cord that runs through it। आपको पता है किड्स कि ये बैकबोन होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है बैकबोन। ये स्पाइनल कॉर्ड ही मेन होता है जिससे हमारे बॉडी की सारी वेन्स और नर्व्स जॉइंट होती है। क्या होता है, सारी की सारी नर्व्स और वेन्स जॉइंट होती है। उससे हमारे बॉडी को सब मूवमेंट और सब में हेल्प होती है। जैसे कि स्कल का क्या काम है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, तो बैकबोन का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। वो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो बहुत ही डेलिकेट होती है। अगर उसमें कुछ लग जाता है तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी डिसेबल हो जाता है, पैरालाइज हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें हो सकती है। तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, बैकबोन। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरे के पूरे बॉडी में बॉडी की नर्व्स और वेन्स जॉइंट हुई होती है। आपको पता है नॉर्मली सब ऐसा बोलते हैं कि पीछे की बाजू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बैकबोन होता है ना, वो बहुत ही डेलिकेट होता है। अगर सारी की सारे बॉडी की वेन्स उसी से कनेक्टेड रहती है, तो अगर उसमें डैमेज आ गया तो स्पाइनल कॉर्ड में आए, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज आ जाएगा तो हमारा बॉडी डिसेबल हो जाएगा। उसमें कोई भी किसी भी टाइप की मूवमेंट ही नहीं होगी। तो क्लियर, बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। Once again kids, I am reading about the backbone. The backbone or spine is made up of blank small bones। कितने bones? 33 bones। और उसको क्या बोलेंगे, vertebrae। क्या बोलेंगे, called vertebrae। और एक जो साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक अलग अलग होते हैं, वो जॉइंट होते हैं। एक को अलग क्या बोलेंगे, vertebra। क्या बोलेंगे, vertebra। These bones are linked together to form blank। ये bones इकट्ठा होके क्या बनते हैं, यस, vertebral column। क्या बनते हैं, vertebral column। The backbone protects the delicate blank that runs through it। कि ये जो बैकबोन है वो कौन से डेलिकेट पार्ट को रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए अभी तो आपने एक्सप्लेन किया कौन से पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर? हैव यू क्लियर अबाउट द बैकबोन? नाउ लेट्स मूव टू लिम्स। दीदी ने डायग्राम में बोला था ना कि अपर लिम्स
और लोअर लिम्स। अपर लिम्स मतलब जो हाथ के लिम्स होते हैं, आर्म्स के लिम्स होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपर लिम्स। और लेग्स के जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे? लोअर लिम्स। देयर आर 2 pairs ऑफ लिम्स इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कितनी पेयर्स होती है लिम्स की? 2। नंबर 1 द अपर लिम्ब, मतलब कि जो आर्म्स वाली होती है वो, एंड द सेकेंड वन इज लोअर लिम्ब, मतलब जो लेग वाली होती है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब आर्म्स वाली और लोअर लिम्ब मतलब लेग्स वाली। क्लियर? नाउ अपर लिम्ब, it consists of the bones of the upper arm, lower arm and hand. अपर लिम्ब क्या क्या कंसिस्ट करता है? अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड। ये सब कुछ किसमें कवर हो जाता है? अपर लिम्ब में। अपर आर्म, लोअर आर्म, हैंड, ये सब कुछ किसमें कवर हो जाता है? अपर लिम्ब में। द wrist, palm and the fingers are made of several small bones. हमारी wrist, हमारा palm और हमारी फिंगर्स इससे मेडअप होती है? सेवरल स्मॉल, छोटे छोटे बोन से मेडअप होती है। All these bones together help us to lift and hold things. ये सारे के सारे बोन्स फॉर्म होते हैं, उससे क्या होता है कि हम कोई भी चीज को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं और किसी चीज को लिफ्ट मतलब उठा भी सकते हैं। राइट? देखो ये मेरे हाथ में डस्टर है तो दीदी ने पकड़ के रखा है ये डस्टर, तो ये किससे? ये पाम, फिंगर्स और रिस्ट और पूरा का पूरा हैंड की हेल्प से हमने ये डस्टर को होल्ड किया। अगर कोई भी चीज को लिफ्ट करना है, उस कोई भी वेट को उठाना है तो क्या करेंगे? तो भी हम ये अपर लिम्ब की हेल्प से कर पाएंगे। ये सारे के सारे सब कुछ मिला के क्या होता है? अपर लिम्ब। Once again I am reading about upper limb. It consists of the bones of the upper arm, lower arm and hand. The wrist, palm and fingers are made up of several small bones. All these bones together help us to lift and hold things. Now about lower limb, मतलब legs के जो limbs होते हैं वो क्या होते हैं? Lower limb. It consists of the thigh bone. Thigh bone, thighs के जो bone होते हैं ना, thighs, उसको क्या बोलेंगे? Thigh bone. Thigh bone का दूसरा नाम क्या है? Femur. F-E-M-U-R. Femur. And the bones of the lower leg. Lower leg मतलब knee, ankle और toes. ये सब कुछ भी lower limb में include हो जाता है। Several small bones make up the ankle and toes. Ankle और toes में बहुत सारे bones होते हैं, पता है? जैसे fingers होते हैं, उससे पग में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Toes. तो उसमें बहुत सारे bones होते हैं। Ankle में भी होते हैं। Femur is the longest bone in the human body. Femur जो थाई का बोन होता है ना, वो longest bone in the body, in the human body, वो सबसे लंबा वाला बोन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। सबसे लंबा वाला बोन होता है सबसे। If I suppose I am asking that blank is the longest bone in the human body, मतलब फेमur होता है जो लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी में। All these bones together help us to walk, stand and sit. ये सारे के सारे बोन्स जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? एक तो हमारे चलने में मदद करते हैं, खड़े रहने में भी मदद करते हैं और बैठने में भी मदद करते हैं। ये सारे के सारे बोन्स लोअर लिम्स के होते हैं, ये सारी की सारी हमारी हेल्प करते हैं। नाउ again I am reading this topic. It consists of the thigh bone and the bones of the lower leg, knee, ankle and toes. Several small bones make up the ankle and toes. Femur is the longest bone in the human body. All these bones together help us to walk, stand and sit. Clear? Hope so kids you will getting to know about all these 3 topics, about the rib cage, the backbone
एंड द लिम्स। आपको समझ में आ रहा है ना किड्स? इमेज भी शेयर की है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको कंसंट्रेशन के साथ और एक बार देख लेना। Here I am sharing a PDF with this section. Try to solve all the answers about this session. Okay? Till next session. Bye.